Of Atmanirbhar Bharat or Self-Reliant India. What does Atmanirbhar Bharat stand for or Self-Reliant India stand for? It's a campaign and it's a vision of a new India dreamt by the Prime Minister Narendra Modi. The rich heritage of Indian toys can be tracked back to the Harappan civilization. Despite a rich toy-making history, we only account for 0.5% of the global toy sales. In fact, almost 80% of the toys sold in India are from China. As modern consumer habits move towards locally made quality products in post-COVID world, Prime Minister Modi called for Team Up for Toys, makes solid commercial sense in a country where half the population is under the age of 25. Global toy industry is over 7 lakh crores, but India's share is relatively small in this global toy market. So how does one transform this crisis into opportunity to help India become self-reliant? Well, we'll try and get some answers to the questions before the toy industry there. We've got an eminent panel, but before that, let me introduce my co-anchor. I am Anil Thomas. With me this afternoon is my co-anchor CS Joshi. Good afternoon, CS. गुड आफ्टरनून अनिल और दर्शकों को बता दें कि आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हम यहाँ पर बातचीत करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। आपको बता दें कि भारत की एक परंपरा रही है, भारत का एक इतिहास रहा है। भारत के अपने घरेलू उद्योग में जो खिलौना उद्योग है वो कभी बहुत एक सर्वोत्तम और उत्कृष्ट शिखर पर हुआ करता था, लेकिन इस वक्त जो खिलौना उद्योग है, भारतीय खिलौना उद्योग, उसकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है और किसी तरह से भारतीय खिलौना उद्योग जो है उसकी स्थिति अच्छी बने, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने भी लोगों से आह्वान किया और किस तरह से इस उद्योग को विश्व के साथ प्रतिस्पर्धा करने लायक बनाया जा सकता है, इसी को लेकर के आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मनु गुप्ता, कन्वीनर हैं टेक्निकल कमेटी द टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं सोनिया गुरनानी, चेयरपर्सन हैं सबका साथी सबका दोस्त के, और डॉक्टर अनिल कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इकोनॉमिस्ट हैं और एसोसिएट प्रोफेसर हैं एसआरसीसी दिल्ली यूनिवर्सिटी के। तो आइए शुरू करते हैं अनिल। Well, let me come first to you, straight first up to you, Manu Gupta. What are the problems? The Prime Minister has made a clarion call, at least in his, even today he spoke about vocal for local. But what's the problem that's facing the toy industry? We've tried and look at this problem from many dimensions. But what are the big issues now? We're 3 months into when the Prime Minister made this clarion call. But what are the issues there before the toy industry when it comes to going vocal for local? Okay, thank you, Mr. Anil. First, I would like to take this opportunity to thank our Honorable Prime Minister. मनु गुप्ता, आपको हम थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। दरअसल हमको हैदराबाद जाना पड़ेगा, वहां पर गृह मंत्री अमित शाह वहां पर रोड शो कर रहे हैं। हम दर्शकों को वहां ले चलते हैं। Well, we'll continue this discussion, but at this point of time, let's head straight to Hyderabad, where Home Minister Amit Shah is taking part in that Greater Hyderabad municipal elections. They are addressing election campaign there in Hyderabad. Let's cut across live. दरअसल यहाँ पर हैदराबाद नगर निगम का चुनाव है और उसको लेकर के वहाँ पर चुनाव प्रचार चल रहा है। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह वहां पर रोड शो कर रहे हैं। Well, today is the last, the final day of campaigning for the civil polls, and it's every political party they're making a last-ditch efforts to woo the voters, and BJP they are out in large numbers, trying to woo the voters there. The BJP has also robbed in top national leaders, including union ministers, for poll campaigning in the city. कल हमने देखा था वहां पर कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर पहुंचे हुए थे। और आपको बता दें कि इन चुनावों में तेलंगाना राष्ट्र समिति, AIMIM, कांग्रेस और बीजेपी ने अपने उम्मीदवार वहां पर खड़े किए हैं। कई निर्दलीय उम्मीदवार भी वहां पर खड़े हैं। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं हैदराबाद से। Well, the campaigning trail, Amit Shah is going to be there in Secunderabad
in Hyderabad for roughly around 9 hours today. He began his campaign trail by a visit to the Bhagya Lakshmi Devi temple, followed by 3 road shows, one in Sanat Nagar, Khairatabad and Jubilee Hills that Amit Shah is going to take part in. He is also scheduled to hold a press conference later in the afternoon before leaving for New Delhi in the evening. So it's a power-packed schedule there for the Home Minister there as the civic polls take place in Hyderabad on the 1st of December with the counting of votes on the 4th of December. Well, more on the story, Aisha Khan, our correspondent, joining us this afternoon. Aisha, good afternoon. Aisha, give us a sense of, this particular civic polls, turning into, a political slugfest when you look at the big names that are there in the fray campaigning for this particular elections. What are the reasons for that? Well, there is a lot at stake for the BJP, for the TRS and AIMIM in these elections. For BJP, actually there is nothing to lose, but this is the best opportunity for the BJP to make its strong foothold in Hyderabad and in Telangana, because BJP recently won the by-elections seat in Dubaka, and that gave a boost to the BJP's workers' morale, and the BJP the BJP workers were motivated then, and the loss of the seat by TRS in Dubaka made the TRS advance the municipal corporation elections here, the GHMC elections here. So that the BJP converted that into an advantage, and this became an extremely high voltage political campaign across the city during this elections, and it was perhaps the first time in the history of Hyderabad that we saw that the municipal corporation elections taking shape of almost the campaign looked like the Lok Sabha poll campaign, wherein the BJP's top leaders reached Hyderabad for the campaign. Yesterday, UP Chief Minister Yogi Adityanath was here. Then BJP National President JP Nadda held a grand roadshow. And today, the Union Minister Amit Shah is signing off for the campaign with a massive roadshow here at Hyderabad. And we just saw that how he received a rousing welcome at the Begumpet airport. Thousands of workers gathered to welcome him. So for the BJP, this is the right time to put pressure on TRS. Now, because of the BJP's campaign, the TRS is under pressure in these elections as well. And on the other hand, it is AIMM which considers Old City as its stronghold. And for AIMIM, this is also a challenge, because Amit Shah's strategy of winning any election, any state, is elections from P2P, that is Panchayat to Parliament. So for Amit Shah, this is municipal corporation to the assembly. Okay. So at the moment, the BJP is making all efforts to see to that at least it comes in the city as a main opposition in the municipal corporation, which is spread across over 24 Vidhan Sabha seats. So this is BJP's golden moment, and the BJP does not want to lose an opportunity, whereas TRS is under pressure and its failures have frustrated people of Hyderabad. So Aisha, people are looking at options. आयशा, हम देख रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह वहां पर मंदिर के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। इस मंदिर के बारे में भी बताइएगा और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि ये सबके दिमाग में सवाल आएगा कि ये एक लोकल बॉडी इलेक्शन है, क्यों वहां पर बीजेपी, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये सब लोग क्यों वहां पर प्रचार करने पहुंचे हुए हैं? देखिए, इस वक्त जी आयशा बताइए। जी, तो भाग्य लक्ष्मी मंदिर पहुंच रहे हैं ओल्ड सिटी में, क्योंकि ये एक अहम मुकाम है बीजेपी के लिए। और ओल्ड सिटी जो है, चारमीनार का इलाका जो है, अभी तक AIMM का गढ़ माना जाता है। तो ये सीधी चुनौती है AIMM के लिए कि अमित शाह सीधा चारमीनार पहुंचेंगे, क्योंकि चारमीनार से अमित शाह हैदराबाद में, तेलंगाना में चारों दिशा में, हैदराबाद के चारों दिशा में विकास का नारा लगाने पहुंच रहे हैं। और AIMIM ने नारा दिया है, बहुत ही दिलचस्प नारा यहाँ पर चुनाव में देखा गया कि शहर भी हमारा, मेयर भी हमारा। तो ये AIMIM का नारा है। लेकिन बीजेपी के जो कार्यकर्ता है,
उन्होंने भी इस नारे को एक नया मोड़ दे दिया। उन्होंने कहा कि शहर भी हमारा, मेयर भी हमारा, देश भी हमारा, प्रधानमंत्री भी हमारा। तो इस तरह का जोश है, उत्साह है यहाँ पर कार्यकर्ताओं में, और बीजेपी के लिए एक सुनहरा मौका है, क्योंकि हाल ही में बीजेपी ने दोबारा सीट जो है लोकसभा की सीट उपचुनाव में जीती है, जो टीआरएस की सीट थी। तो टीआरएस के लिए बहुत बड़ा धक्का रहा, जिसके बाद टीआरएस ने तुरंत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन को एडवांस कर लिया, यानी प्रीपोन कर दिया। तो बीजेपी ने इसे एक सुनहरा मौका मान के, क्योंकि बीजेपी के लिए अब हवा उनके रुख में नजर आ रही है, तो ऐसी सूरत में बीजेपी ये मौका खोना नहीं चाहती, और बीजेपी इस वक्त हर छोटे मतदाता तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ बीजेपी विकास का नारा दे रही है। देखिए, तेलंगाना एक नया स्टेट है, नया राज्य है, और यहाँ पर खासकर युवाओं के लिए रोजगार नहीं है। यहाँ के जो युवा हैं वो निराश हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीदें थी कि नया राज्य बनेगा तो उनकी किस्मत बदलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये क्या है, बीजेपी के लिए एक बेहतरीन मौका है इस समय के युवा वोटर्स को अपनी तरफ खींचे, तो बीजेपी वही कर रही है। और बीजेपी, जैसा कि अमित शाह की स्ट्रैटेजी रही है पंचायत टू पार्लियामेंट, और जो हमने उत्तर पूर्व भारत में देखा किस तरह से त्रिपुरा ने बीजेपी एक जीरो से सत्तारूढ़ पार्टी बन गई, तो बीजेपी ये चाहती है कि कम से कम तेलंगाना में अपनी मौजूदगी को बनाए रखने के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर अपना झंडा लहराना और यहाँ पर कमल खिलाना बेहद जरूरी है। ऐसी सूरत में बीजेपी ने पूरे प्रचार में केंद्र सरकार की उपलब्धियां और विकास का नारा लगाया, तो दूसरी तरफ टीआरएस लगातार बचाव में बैकफुट पर चलती हुई नजर आई, क्योंकि टीआरएस इस समय दबाव में है, और एआईएमआईएम को भी इस चुनाव में काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि अब टीआईएम के सामने एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है बीजेपी, जो उन्हें चुनौती दे रही है, और टीआईएम को खतरा है कि ओल्ड सिटी में उनके लिए अगर बीजेपी के उम्मीदवार जीतते हैं तो वो मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो इस समय अमित शाह सीधा भाग्यलक्ष्मी मंदिर जाएंगे। भाग्यलक्ष्मी मंदिर जो है चारमीनार के नीचे है, और वहाँ एक छोटा सा चबूतरा है। ठीक है आयशा, हम दर्शकों को भी बता दें और आपको भी बता दें कि वो अमित शाह इस वक्त भाग्यलक्ष्मी मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। आयशा, एक राजनीतिक सवाल आपसे हम करना चाहते थे, ये एआईएमआईएम का जो फैक्टर है इसको आप किस तरह से देखती हैं, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि बिहार के चुनाव में भी एआईएमआईएम वहां पर उतरी थी, और आने वाले समय में बंगाल के साथ साथ कुछ अन्य जगहों पर भी चुनाव होंगे, और एआईएमआईएम ने ये संकेत दिया है कि वहां भी वो उतरने जा रहे हैं। तो बीजेपी के रणनीतिकारों के दिमाग में एआईएमआईएम का फैक्टर किस तरह से है, और इस फैक्टर को कितना आप महत्वपूर्ण मानती हैं? जी देखिए, एआईएमआईएम देखा जाए तो हैदराबाद की रीजनल पार्टी है, और खासकर उनकी जो लिमिटेशन है वो सिटी तक ही अभी तक रही है, लेकिन एआईएमआईएम धीरे धीरे अपना जो प्रभाव है उसे बढ़ाने की कोशिश में है, और महाराष्ट्र में एक लोकसभा सीट जीतने के बाद एआईएमआईएम ने बिहार में विधानसभा के चुनाव में 5 सीट जीत लिए। तो अब एआईएमआईएम के हौसले बुलंद हैं। भले ही एआईएमआईएम जो है वो हैदराबाद के बाहर अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश में है, लेकिन धीरे धीरे ओल्ड सिटी जो हैदराबाद का पुराना शहर है, जो एआईएमआईएम का गढ़ है, जहां से करीब 40 से ज्यादा सीट, 150 की जो संख्या है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, 40 से ज्यादा सीट जो है एमआईएम जीती रही है। तो ऐसे में इस बार एआईएम को खतरा इस बात का लगता है कि बीजेपी विकास का नारा लेकर मैदान में उतरी है, और अगर आप ओल्ड सिटी जाते हैं तो ओल्ड सिटी एक ऐतिहासिक नजर से देखा जाए तो चारमीनार के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ का विकास जो है वो किसी न किसी तरह थम गया है। तो ऐसी सूरत में यहाँ के लोग भी बदलाव चाहते हैं। ये एआईएमआईएम के लिए बहुत बड़ी चुनौती है बीजेपी की तरफ से। और अगर एआईएमआईएम का पुराने शहर में, हैदराबाद के पुराने शहर में वो अपना फुटहोल्ड खोती है, तो एआईएम की जो बढ़त का जो इरादा है, जो ऊंचे सपने एआईएम दिखा रहा है अपने कार्यकर्ताओं को, वो आगे नहीं बढ़ सकती। तो बीजेपी ने एआईएम के खिलाफ जो कैंपेनिंग हुई है बीजेपी के कद्दावर नेताओं की तरफ से, खासकर
बीजेपी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने, उन्होंने जमकर ओल्ड सिटी में प्रचार किया है और उन पर आरोप भी लगे हैं असदुद्दीन ओवैसी पर कि उन्होंने इस इलाके का विकास नहीं किया है और ये भी उन पर आरोप लगे कि पुराने शहर में रोहिंग्या जो शरणार्थी हैं उन्हें वहां पर अवैध तरीके से शरण दी गई है। तो ऐसे कई उन पर आरोप भी लग रहे हैं और ये जो है उनके खिलाफ जाता है, उनके व्यक्तित्व के खिलाफ जा सकता है। तो ऐसी सूरत में AIMM पूरा कोशिश करेगा। ठीक है आयशा, आप 2 मिनट, आयशा 2 मिनट आप रुक जाइए, हम सीधी तस्वीरें दर्शकों को दिखाना चाहते हैं मंदिर की। विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम भाग्यलक्ष्म्यै च विद्महे अष्टलक्ष्म्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम या श्री स्वयं दुर्गतिनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धापदां कुलजना प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वां। बोलिए भाग्यलक्ष्मी माता की, नव दुर्गे महारानी की, गुरुजी महाराज की, मोहन महाराज की, धर्म की अधर्म का प्राणियों को विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। भारत माता की। शिव नमः पार्वती पते।
Well, we still got Aisha there joining us on the phone line waiting for Aisha. Give us the significance of this particular visit. Well, Aisha, they're still with us. Aisha, good afternoon. Aisha, once again, what's the significance of this particular, visit to this temple before beginning his, this is the last day of campaigning, but the significance of, Union Minister Amit Shah's visit to this temple, because this is the same temple that the BJP President JP Nadda also visited when he was in Hyderabad for campaigning. आयशा, हमारी आवाज आ रही है आप तक? जी चंद्रशेखर. Aisha, give us the significance of this particular visit to this temple, just adjacent to the Charminar, because the BJP president also had visited the temple when he had come for campaigning, and Amit Shah here, before beginning his campaigning, visiting the temple and paying his respects there. Yes, absolutely. This temple is of historic importance to the people of Hyderabad, because according to historians, there was a temple here near the Charminar, one of this corner, and this and when the Charminar was built, this was moved to a different place. Then later on, a small temple came up in 1960, which later on led to controversy, and the issue is now in court. And the Archaeological Survey of India had also objected to construction of the temple in this vicinity. But for the BJP, this is important, because the people of Hyderabad in Old City believe that there was a temple existing near this place where Charminar was built. So BJP makes this as a promise to the people of Old City that this temple will stand with their ideology, with their belief. So this temple is of historic significance for the people of Old City, and the BJP has earlier promised that the temple construction will be done if the BJP manages majority in the municipal corporation elections. And the Bhagyalakshmi goddess in Hyderabad is considered as the goddess for the city, and that is and it is from here that the UP Chief Minister gave a call for the change of name to the entire city. Now they want Hyderabad to be named, they want the name changed to Bhagyanagar. So this is one of the issues during this campaigning, where the BJP leaders have been demanding that the city name should be changed from Hyderabad to Bhagyanagar, and moving to goddess Bhagyalakshmi who resides in this temple. So this temple is important for the people of Hyderabad, for the Hindu ideology, and the BJP has been making efforts to safeguard the interest of the believers in the old city. So on the other hand, the AIMIM refutes the claim that there was any temple existed in this place, and this had also led to clashes earlier also from clashes between the AIMIM and the BJP workers. So at the moment,
this temple is a center of faith for the believers, for the Hindu ideology believers in the old city. Okay. So that is where the name of the city Bhagyanagar, which the BJP considers as the original name of the city before the Nizams ruled Hyderabad. So BJP wishes to give a new identity to this entire city, and that begins from the Bhagyalakshmi Mandir. Okay, so that particular, the visit to the temple is important because the BJP has time and again, as Aisha put it, has spoke about to the city being referred to as a city called Bhagyanagar, and this particular issue had recently skirted controversy on the Twitter too, on social media too. और बिल्कुल जो ओवैसी की पार्टी है AIMIM, उसकी ओर से काफी विरोध भी किया जा रहा है। जो बीजेपी वहां पर कह रही है कि वो नाम बदलेंगे हैदराबाद का, काफी विरोध भी AIMIM की ओर से किया जा रहा है। और फिलहाल हम अपने कार्यक्रम की ओर वापस चलते हैं, अनिल। Well, exactly. Let's also now take a quick look at what happened in Mann Ki Baat today. Prime Minister Narendra Modi in his Mann Ki Baat program underlined the campaign of vocal for local and stressed that Sri Aurobindo's philosophy of Swadeshi shows us this path. जहां जो नया है वहां से हम सीखें, जो हमारे देश में अच्छा हो सकता है उसका हम सहयोग और प्रोत्साहन करें। यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान में वोकल फॉर लोकल मंत्र की भी भावना है। खासकर स्वदेशी अपनाने को लेकर उन्होंने जो कुछ कहा वो आज हर देशवासी को पढ़ना चाहिए। साथियों, इसी तरह शिक्षा को लेकर भी श्री अरबिंदो के विचार बहुत स्पष्ट थे। वो शिक्षा को केवल किताबी ज्ञान, डिग्री और नौकरी तक की सीमित नहीं मानते थे। श्री अरबिंदो कहते थे, हमारी राष्ट्रीय शिक्षा हमारी युवा पीढ़ी के दिल और दिमाग की ट्रेनिंग होनी चाहिए, यानी मस्तिष्क का वैज्ञानिक विकास हो और दिल में भारतीय भावनाएं भी हो, तभी एक युवा देश का और बेहतर नागरिक बन पाता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। हमारे साथ मनु गुप्ता जुड़े हुए हैं, कन्वीनर हैं टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। मनु गुप्ता, अभी प्रधानमंत्री को भी हम सुन रहे थे, वोकल फॉर लोकल की लगातार वकालत प्रधानमंत्री करते रहे हैं हर क्षेत्र में। और अगर हम खिलौनों की बात करें और खासकर भारत में निर्मित खिलौनों की बात करें, और उसमें जो भारत में निर्मित खिलौने हैं उसका जो वैश्विक खिलौनों का उद्योग है, बहुत कम हिस्सा भारत में निर्मित खिलौनों का है। जो वर्तमान स्थिति है क्या है? मनु गुप्ता, आपका मुझे लगता है म्यूट है, आप उसको अनम्यूट कीजिए पहले। मैं माफी चाहूंगा जोशी साहब। मैं पहले तो प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा इस अवसर के लिए कि उन्होंने जो खिलौना इंडस्ट्री की दशा थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, अब उन्होंने एक दिशा दी है, उसका अनुपालन करके, उसका अनुसरण करते हम खिलौना निर्माता इस देश को आगे लेके जाएंगे। अब आपका जो प्रश्न है कि खिलौना उद्योग भारत का क्यों पिछड़ रहा है, पिछड़ इसलिए रहा है कि हमें समझना पड़ेगा खिलौना इंडस्ट्री भारत में फ्रेगमेंटेड है। कोई नेचुरली डेवलप्ड टॉय क्लस्टर नहीं है, हैं तो ट्रेडिशनल टॉय क्लस्टर है। आज हम मॉडर्न टॉय की बात करते हैं। विश्व भर में 82% खिलौना मॉडर्न टॉय ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक खिलौना का बिक्री है। भारत में भी इसकी संख्या 75% तक है। तो वेयर वी आर लैकिंग इज हमारे पास लैक ऑफ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, बोथ इन कैपिटल सेक्टर एंड इन टेक्नोलॉजिकल सेक्टर। अगर इन दोनों दिशाओं में हमारा काम होगा तो हम भारत के खिलौना उद्योग को भी विश्व में स्थापित कर पाएंगे। अनिल जी ने बात करी थी 0.5% से कम भारत का वैश्विक योगदान है, बिल्कुल सही है वो। और इसके लिए मैं दो पहलू आपको बताना चाहूंगा, एक है मैक्रो पहलू, एक है माइक्रो पहलू। क्योंकि यहाँ हम एक बड़े परिदृश्य की बात कर रहे हैं तो मैं पहले मैक्रो पहलू पे आऊंगा। वो मैक्रो पहलू जिसको भारत की सरकार देख सकती है ताकि हम अपनी खिलौना इंडस्ट्री को विश्व में स्थापित कर सकें। सबसे जरूरी है उसमें एक नेशनल टॉय पॉलिसी लाना। देखिए, कोई भी काम को क्रियान्वयन करने के लिए एक नेशनल टॉय प्लान बनना चाहिए। हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। ऑलरेडी DIPP ने एक नेशनल टॉय प्लान बना दिया है, उसका क्रियान्वयन हो रहा है और आगे उस पॉलिसी पे चलते हुए हम आगे जाएंगे।
दूसरा बहुत क्रिटिकल है कि हर लेवल पे जब हम लोकल फॉर वोकल की बात करते हैं तो खिलौना निर्माता को अपनी सप्लाई चेन को लोकलाइज करना होगा, खिलौना विक्रेता को अपने शेल्फ स्पेस को इंडिजेनाइज करना होगा, खिलौना क्रेता जो ग्राहक है, जो हम भी हैं, उन्हें भारत के खिलौनों को प्राथमिकता देनी होगी। तो ये चैलेंजेस ओवरकम हो जाएंगे अनिल जी, जोशी जी। तो अभी के लिए मेरा आपका ठीक है, ये चैलेंजेस कैसे ओवरकम होंगे इसके लिए अभी हम अनिल कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सोनिया गुरुनानी हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरपर्सन है सबका साथी सबका दोस्त के। सोनिया गुरुनानी, अगर भारत में जो अभी क्लस्टर मौजूद हैं जो बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड हैं, जिसका देश में ज्यादा पता भी नहीं है, वो कौन कौन से खिलौने हैं जो भारत में हैं लेकिन उसको उतना एक्सप्लोरेशन मिला नहीं है? बिल्कुल सही। एक्चुअली हमारा ये जो कैंपेन है वोकल फॉर लोकल, ये इसी के लिए ही है, सो दैट जितने भी भारतीय कला है जो हमारी छोटे छोटे गांव में, क्लस्टर्स में जो बसी हुई है, इतना टैलेंट है जो ऑल ओवर, उनको निखारने के लिए उनकी जो प्रोडक्ट है उनको हम लोग प्लेटफॉर्म देते हैं जिससे उनकी मार्केटिंग हो सके, उनकी टेक्नोलॉजी कैसे बढ़ाई जाए, उनकी डिजाइनिंग स्किल्स कैसे बढ़ाए जाएं। क्योंकि अगर हम देखा जाए तो हम लोग किसमें लैक करते हैं, हम लोग उनके जो स्किल ट्रेनिंग है, उनकी जो टेक्नोलॉजी है, उनकी जो मार्केटिंग, जो डिजिटल मार्केटिंग है, उससे तो वो बिल्कुल भी अवगत नहीं है। और ना ही वो लोग जानते हैं कि उनके पास इतना जो टैलेंट है और उसका देश भर में, हमारे देश में भी और बाहर के देशों में भी बहुत डिमांड है और बहुत डिमांड कराई जा भी सकती है। वो कैसे, अगर हम डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी में थोड़ा ज्यादा ध्यान दें, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ लाएं, कुछ चीजें अलग हटके करें, क्योंकि हमारे जैसे कितने साउथ के बहुत सारे खिलौने हैं जो मिट्टी के बने हैं। टीपू सुल्तान ने उनको बड़ा ग्लोबली उसको रिकग्नाइज किया था, बट बहुत सारे ऐसे हैं, मणिपुर की है जैसे, जिसमें माता रानी और जो पिछड़े कपड़े जो होते हैं उनका खास उसका एक नाम भी दिया गया है जिसे कहते हैं लाई पादिबी या ऐसे कुछ करके नाम है। तो ये सारी जो कलाएं हैं हमारे अंदर और हमारे देश में, इसको हमें आगे अपने पूरे देश विदेशों में फैलानी है। तो अब की जो जनरेशन है वो माता जी और हमारी हिस्ट्री, हमारे कल्चर से भी थोड़ा सा हट गई है। तो उससे, इन चीजों से हम इसको भी बढ़ाया जा सकता है। जैसे मैंने देखा है कि रावण के आजकल छोटे छोटे पुतलियां, हाँ जी, डॉक्टर अनिल कुमार, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे मैं हाथ कढ़ाई में बहुत सारे। ठीक है, हम आपसे बात करते रहेंगे। Well, Dr. Anil Kumar also there with us, somebody who's covered this particular, this particular industry or has had a look at this particular industry. But looking at the time since the Prime Minister gave the clarion call for local for vocal when it comes to toys in the month of August in his address in Man Ki Baat, to now we are at the end of November there. What's been the upshoot or what's been the progress that is made, especially when it comes to going vocal for local, especially in the toy industry? See, in the toy industry, just talking in the vacuum about vocal for local will not be sufficient. What needed is that right now we have about only 10% of the units. True. We have about 1,250 units, and only 10% of the units are under the organized sector. Meaning 90% are still in the unorganized sector. We have the MSME sector, which has many schemes to upgrade the technology to provide the banking credit at the concessional rate. So, as a first step, I think the unorganized units must be encouraged to get themselves registered under MSME units to take advantage of skill development, to take advantage of technology upgradation, and also to get the bank finance on concessional terms. Another is that we need to encourage setting up of mini industrial clusters throughout the country. As rightly pointed out by Mr. Manu,
that right now we do not have the toy clusters in the country. So why can't we encourage the kind of, small kind of clusters throughout the country? I can cite at least one example here. Kopala in Karnataka. It is India's first toy cluster which has come up in a 400-acre facility. So why can't these clusters be set up so that, there is linkages between the different kind of units and some good products, the localized products can come up. Another thing is that the way Indian handicrafts are popular throughout the world, on those lines, the Indian toys can come up. We have some companies which are Mumbai based, which are Bengaluru based, and which are Chennai based, which have come out with unique ideas like Ganesha, stories on Hanuman, stories on Krishna. These can be popularized and our export earnings can be enhanced, which is right now, as you said in the beginning, it is just 0.5%. We have a very big industry of the toy, globally speaking. The volume is rupees 7 lakh crore. Yep. We have to tap this, what I would say is the unexplored area, and there is a great scope for us to work in this direction. Okay. Unexplored area and scope for us to work. Manu, when you look at, clusters that Dr. Kumar has been talking about, Uttar Pradesh government did make a move. Uttar Pradesh government did try that first international toy cluster there in Yamunanagar. Do you feel those kind of clusters needs to be there at least in 4-5 segments of India, at least the east, west, north, south and central part of India, so that the toy industry can gain momentum? Sure, Anilji. As I see, Uttar Pradesh has always been a pioneer in setting up toy clusters. In fact, the first toy cluster of the country, which is also known as a toy city, is already there in the Greater Noida. Now, the Jewar one you're talking about is a third cluster in the country after the Kopal one. Apart from that, Madhya Pradesh government has proposed a toy cluster near Indore. Gujarat government is also planning a toy cluster. These toy clusters are the way forward. We already have 12 traditional toy clusters which have GI tags. India is the only country which has GI tags on 12 traditional toy clusters. Even China does not have it. So we do have a distinct advantage over everyone there. Apart from this, for the modern toys, we need more than these 5 or 6 toy clusters that have been planned. Kusha Kheda in Rajasthan is another one that is being developed. Moves like this will go a long way in determining the future of the Indian toy industry. मनु गुप्ता, एक सवाल यहाँ पर आ रहा है कि आप अगर खिलौनों की बात करते हैं तो खिलौने बच्चों के काम आते हैं, बड़ों के काम तो आते नहीं। बड़ों से आप अपील कर सकते हैं, आप बच्चों से अपील कर नहीं सकते। अभी तक जिस तरह के खिलौने, आप पारंपरिक खिलौनों की बात कर रहे हैं, वो ज़माना चला गया जब गुड्डे और गुड़ियाओं की शादियां किया करते थे लोग, बच्चे खेलते थे उससे। अभी बारबी डॉल की बात करते हैं अगर हम, तो बारबी डॉल में भी उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड किया है। इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों का अभी वक्त है, बच्चों को आप देखते हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिक खिलौने ज़्यादा लेते हैं। तो इस सब से कैसे कम्पीट करेंगे आप? कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि काफ़ी पीछे हैं अभी अगर टॉय इंडस्ट्री की बात करें तो? नहीं, पीछे हैं। पीछे होने का रीज़न भी मैंने आपको पहले दिया। बिल्कुल। पर ऐसा नहीं है कि ये दूरी मापी नहीं जा सकती। देखिए, मैं साक्षी रहा हूँ खुद इस बात का। 90 की दशक में जब चाइना की टॉय इंडस्ट्री वाज नॉट इवन प्रेजेंट। इनफैक्ट आई विल लाइक टू पॉइंट आउट कि टॉयज और टेक्सटाइल 2 ऐसे खंबे थे, ऐसे स्तंभ पे थे जिसमें चाइना ने अपने आप को वैश्विक बाजार में स्थापित किया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि दूरी नापी नहीं जा सकती। मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमें दिशा दिखा दी गई है, दशा हमारी खराब थी, हम उस पर सुधरेंगे। सिर्फ कुछ पॉलिसी चेंजेस और कुछ माइक्रो लेवल पे एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए खिलौना निर्माता मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ माइंडसेट चेंजेस हमें चाहिए। हम वो दूरी नापने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इनफैक्ट एक नेशनल टॉय प्लान मैंने और कुछ लोगों ने बना के भारत सरकार को सबमिट करा है। एक नेशनल टॉय प्लान भारत सरकार ने भी बना लिया। अब से कुछ देर पहले आप बात कर रहे थे इन 3 महीनों में क्या हुआ है। इन 3 महीनों में मैंने एक लिस्ट बनाई है क्या हुआ है। भारत ने एक नेशनल टॉय प्लान बनाया है, एक नेशनल टॉय प्लान जिसमें 14 मिनिस्ट्रीज सम्मिलित हैं। एक नेशनल टॉय फेयर विच इज द बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट टॉय फेयर, वर्चुअल टॉय फेयर जो होने वाली है, उसके लिए डेट डिसाइड हो गई है, उसका प्लान बन रहा है।
वो 27-28 फरवरी 1-2 मार्च 4 दिन के लिए एक वर्चुअल नेशनल टॉय फेयर लगने वाली है। 6 क्लस्टर्स का मैंने जिक्र करा जो इन 3 महीने के दौरान प्लान हुए हैं। BIS क्वालिटी स्टैंडर्ड लेके आई है ताकि भारत का खिलौना निर्माता भी विश्व स्तर के खिलौने बना सके। तो बहुत कुछ हो रहा है। द गवर्नमेंट इज वॉकिंग द टॉक। सोनिया गुरनानी, सवाल लगभग इसी तरह का है। आप तो बहुत ज़्यादा बच्चों के नज़दीक रहती हैं और बच्चों को किस तरह के खिलौने चाहिए ये आपसे अच्छी तरह कोई नहीं जान सकता। तो क्या आपको लगता है कि जिन पारंपरिक खिलौनों की हम बात कर रहे हैं उसको किस तरह से अपग्रेड कर सकते हैं, ताकि क्योंकि जब तक खिलौने बिकेंगे नहीं तो कहाँ से टॉय इंडस्ट्री डेवलप होगी? बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि इसमें हमें, जैसे मैंने पहले भी कहा कि कुछ न्यू डेवलपमेंट्स में ज़्यादा जोर लगाना चाहिए। उनकी डिज़ाइन डेवलपमेंट्स इस तरीके से होनी चाहिए। मार्केटिंग तो ज़रूरी है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज में जो हम ला सकते हैं, ग्लोबली भी जो हमें मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज अपनानी चाहिए वो हम अब धीरे धीरे अपना रहे हैं। और जैसे लोकली, जैसे हमारे कर्नाटका की कुछ छोटे छोटे टॉयज हैं जो मिट्टी से बने हुए हैं, आसाम की जो मिट्टी से बने हुए हैं, उनको थोड़ा सा अगर हम लोग एक ग्लोबल टच देंगे, थोड़ा सा उनकी डिजाइनिंग थोड़ी ऐसे करेंगे। अब जैसे मैं पीलीभीत में, मेरे पास 700 कारीगर्स हैं जो बांसुरी बजाते हैं, तो उनके लिए हम लोग एक ऐसा वो कर रहे हैं कि जैसे पहले बैकपाइपर था, बहुत फेमस स्टोरी है, ग्लोबली मानी जाती है। तो इसी बांसुरी को जो बैम्बू की बनी है उसको हम यहाँ का बैकपाइपर बनाना चाहते हैं जो कोविड को ले जाएगा आगे। तो वो चूहों को ले जाता है आगे, यहाँ पर हम बैकपाइपर बनाना चाहते हैं जिससे बच्चे बहुत आकर्षित होंगे। हम तो सब बांसुरी जानते हैं, कृष्ण भगवान की उससे हम लोग जानते ही हैं उसको, बट ग्लोबली अगर हम इसको और बढ़ाएंगे तो बहुत सारी ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हैं, डिजाइन डेवलपमेंट पे बहुत जोर डाला जाए। मैं तो कहूंगी कि जो रेफॉर्मेशन हम लोग डिजाइनिंग और न्यू डेवलपमेंट में ला सकते हैं और कुछ चीजें ऐसी बनाएं जिससे हमें एक जो साइकोलॉजी बाहर की है, ग्लोबली अगर हम इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या ग्लोबली हम बढ़ाना चाहते हैं इन छोटे आर्टिजन्स के टैलेंट को, तो हमें उनकी साइकोलॉजी को भी समझते हुए वहां की मार्केट को टारगेट करना चाहिए। एंड मैं सोचती हूँ ये बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। हम लोग के कारीगर, मेरे पास 1800 कारीगर बरेली के हाथ कढ़ाई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अभी क्रिसमस आने वाली है, तो हम लोग छोटे छोटे उनके स्टार्स के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करके और बॉल्स बना के, जो क्रिसमस आइटम्स जिसे कहते हैं, ये लोग क्रिसमस ट्री पे लगाते हैं। तो इसको हम बहुत बढ़ा रहे हैं। इस तरीके से ये सवाल हम अनिल कुमार जी से पूछना चाहेंगे। अनिल कुमार जी, सवाल फिर उसी तरह का है कि जिन खिलौनों की हम बात कर रहे हैं, ये खिलौने हम जरूर कह रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं हैंडीक्राफ्ट के श्रेणी में आ चुके हैं। लोग इनको खरीद कर अपने घरों में सजा रहे हैं, लेकिन बच्चे जो खेल रहे हैं, वो जो विदेशों से खिलौने आ रहे हैं, वो बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक खिलौने हैं। कैसे हम कॉम्पीट करेंगे? एक्सेप्टेबल जी, कैसे कॉम्पीट करेंगे? सबसे पहले हमें डोमेस्टिक डिमांड को पैदा करना जरूरी है। और अभी जैसे आप सबको विदित है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है उसमें फोकस है टॉय एजुकेशन के थ्रू, मतलब बच्चों को एजुकेशन देना टॉयज के थ्रू। तो मेरे को लगता है आने वाले समय में इस तरह के टॉयज जो बच्चों को कुछ शिक्षा दे सके, एक टॉयज के माध्यम से, जिनको मोंटेसरी मेथड्स भी बोलते हैं, उनकी काफी डिमांड आने वाली है। तो टॉय इंडस्ट्री को उसके लिए तैयार होना चाहिए और इस तरह के खिलौने बनाने चाहिए जो कि एजुकेशन पर्पस को भी सर्व कर सके। नंबर 2, जहां तक इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों की बात है, आज हमारे देश में जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, पीछे 6 साल में 4 गुना बढ़ी है, लेकिन अभी तक हमने टॉय अनिल